Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to continue with the previous topic of your EVS book, that is, lesson number 10, The Story of Food. So, in the previous video, we already discussed about how plants and animals are the most two important sources of food for us. And we got to know that how plants provide us different things, be that fruits, vegetables, cereals, spices, etc. Now, today we are going to know more about the things that plants provide us. And the first thing that we are going to discuss is oil. Oil is obtained from the seeds of plants like groundnut, mustard, sunflower, and coconut. The oils that are used in cooking are called as edible oils. Find out the name of the cooking oil your mother uses. Also, find out the brand name of the oil that you put in your hair. So oil is something which also we get from the plants. Oil is something you all might have seen at your home, and this is something which we use in while cooking the food, and also we put oil on our hair. We use oil for our hair. So this oil we get also from the plant. So the plants that provide us oil, they are groundnut, it is a mustard, sunflower and coconut. सो जो नारियल या फिर सरसों का तेल या फिर जो मूंगफली हम खाते हैं उससे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. जैसे कोकोनट से हमें ऑयल मिलता है तो वो हम यूज़ करते हैं हेयर ऑयल बनाने के लिए. Even people use it for cooking purposes. So these are some plants. चाहे वो sunflower हो, mustard हो, coconut हो, groundnut हो, and there are many more than it. Like there is रेप सीड ऑयल हम यूज़ करते हैं. हम या फिर लिंसीड जो है वो हम यूज़ करते हैं. सो दीज आर सम प्लांट्स दैट प्रोवाइड अस दी ऑयल जो हम फिर यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. सो जो ऑयल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम एडिबल ऑयल्स कहते हैं. बिकॉज सी फॉर एग्जांपल देयर आर सम ऑयल्स जो कि हम हेयर पे यूज़ करते हैं, जो कि हम बालों को लगाते हैं. वी कांट नेम दैट एज एन एडिबल ऑयल बिकॉज दैट इज़ समथिंग वी आर यूजिंग ऑन आवर हेयर. So edible oil, edible as the name says, edible means which we, you know, use for the cooking purpose. Find out the name of the cooking oil your mother uses. Now you have a homework to do कि आपको ये देखना है जो आप फूड में यूज़ करते हो ऑयल, जो आप खाना बनाते हो उसके लिए जो ऑयल आप यूज़ करते हो, यू हैव टू गेट टू नो कि वो किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है. वो मस्टर्ड से किया गया है, ग्राउंड नट से किया गया है, कोकोनट का है, या फिर सनफ्लावर का, या फिर किसी और चीज़ का. सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू नो. एंड ऑल्सो यू हैव टू नो कि जो आप ब्रांड यूज़ करते हो, जो हेयर ऑयल आप यूज़ करते हो, तो उसका ब्रांड नेम. ओके, so that's for the homework. Moving on, there is one more thing that plants do for us. There is one more thing that shows that plants are being more beneficial to us, and that is medicinal plants. So medicinal plants, we say medicinal plants, medicine as the name sounds, that is related to medicine. Okay, so whenever we are sick, जब भी कभी हम बीमार होते हैं, so obviously जो हमारे बड़े होते हैं, what do? वो हमें medicines देते हैं, वो हमें दवाई देते हैं, so that we can हम ठीक हो जाए, हम क्योर हो सके या फिर हम ठीक हो सके. सो कुछ ऐसे मेडिसिन्स जो दुनिया में हैं या फिर जो दुनिया में बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो प्लांट्स से बनाए जाते हैं. ओके, सो कोई प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, एंड उनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, एंड दस द प्लांट गेट्स द नेम मेडिसिनल प्लांट्स. यानी वो ऐसे प्लांट्स जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी प्लांट पार्ट को, जिसको मेडिसिन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वी कॉल दोज प्लांट्स एज मेडिसिनल प्लांट्स. We use dried roots of mulethi, that is licorice, to cure our cough and cold. So now we are going to know some plants कि उनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है एज अ मेडिसिन, एंड वी विल गेट टू नो कि वो किस बीमारी को क्योर करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ मुलेठी, जिसको हम हिंदी में, ये मुलेठी इज़ अ हिंदी वर्ड, एंड जिसका इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं लिक्वरिस. सो ये जो है, इसकी रूट्स जो होती हैं वो
जब ड्राई उनको ड्राई किया जाता है, फिर उसको क्रश किया जाता है, उसका पाउडर जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर एज अ मेडिसिन। एंड वो जो है, अगर हम वो यूज़ करेंगे, अगर किसी को कफ होगा, किसी को खांसी या ज़ुकाम होगा, तो वो क्योर हो सकता है। दैट इज़ इफ़ यू यूज़ liquorice leaves, sorry, liquorice dried roots, so it can cure cough and cold. So this is the first plant you get to know that this plant has this medicinal value. So liquorice is a plant that is also named as मुलेठी, जो क्योर करता है कफ एंड कोल्ड को। Second one is we can also use the leaf juice of tulsi to cure our cough and cold. Also there is another plant that is tulsi, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट पाया जाता है हर जगह पे। तो इसके जो लीव्स है उसका जूस जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर वो पियेंगे, तो अगर किसी को कफ कोल्ड होगा तो वो क्योर हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू इफ़ वन कांट गेट मेडिसिन और समथिंग। सो व्हाट ही कैन डू इज़, और व्हाट शी कैन डू इज़, they can just extract the juice from the leaves of a tulsi plant, and then if they just drink it. So if they take it and if they are suffering from cough and cold, तो वो cure हो जाता है। After that, we take leaves and seeds of datura to cure disease like asthma and bronchitis. There is one more plant that is datura, जिसको हम थॉर्न एप्पल कहते हैं। तो ये प्लांट जो है, इसके अगर लीव्स और सीड ऑयल जो है, सीड्स अगर हम यूज़ करेंगे, ये किस लिए यूज़ होता है, जो डिजीज़ किस रिलेटेड होती है, रेस्पायरेशन के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड। जब किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो ब्रोंक्स होता है, जो एयर पैसेज जाती है टू द लंग्स, जब कभी उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दे कांट वो एयर कैरी नहीं कर पाते हैं, या फिर उनसे वो हवा जो आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो इफ़ एट दैट टाइम हम दतूरा के लीव्स या फिर सीड्स यूज़ करेंगे, तो एट दैट टाइम वो क्योर हो सकता है। सो दतूरा को इंग्लिश में थॉर्न एप्पल कहते हैं, वेर एज तुलसी इज कॉल्ड एज होली बेसिल। We use the leaves and seed oil of neem to cure fever. Then there is one more plant with a medicinal value, that is neem. Neem tree जो है, ये भी almost हर जगह पे पाई जाती है इंडिया में। एंड इसके जो लीव्स एंड इसके जो सीड्स है, सीड ऑयल जो है, वो किस में हेल्प करते हैं, अगर फीवर होता है तो वो फीवर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो दिस इज समथिंग which is its medicinal value, that if we use the leaves and seeds of neem tree, we can cure fever. We take the fruits of amla to cure constipation. We take oil obtained from the leaves of eucalyptus, that is safeda, to cure nose and throat disorders. Then there is one more tree, that's amla. Amla is a tree. So amla is a fruit of amla tree. So in case of amla tree, we use the fruit of it as a medicine, that is amla. So if someone is suffering from constipation, if they take amla, so it might cure it. Okay, so इससे जो है constipation, जो कब्ज होती है, वो ठीक हो जाती है अगर हम आंवला कंज्यूम करते हैं या खाते हैं। इसी तरह से यूकलिप्टस एक प्लांट है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, बट इट इज़ फाउंड मैक्सिमम ये ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पाया जाता है। तो इसके जो लीव्स अगर हम जो है यूज़ करेंगे, अगर किसी को नोज़ इन्फेक्शन होगा या थ्रोट डिसऑर्डर, कोई सोर थ्रोट होगा, कुछ इरिटेशन होगी, so if we use leaves of eucalyptus, it can actually cure the disorders of nose and throat. Okay, so these are some medicinal plants, these are some medicinal values of different plants. We use turmeric, that's haldi powder, for the treatment of wound and sprains. And then there is also turmeric. Turmeric is something which we all know, which we all are aware of. So this turmeric helps us in curing if we have if someone gets any wound or injury, or there is any sprain or anything. So if we use turmeric for that purpose, it can cure it. It is used for the treatment of any injury. अगर किसी को लग जाती है, स्प्रेन हो जाता है, तो अगर वो टर्मरिक हल्दी जो है वो उस पर अगर कहीं पे लग गई है तो उस पर टर्मरिक लगाएगा तो that can heal it. Okay, so ये इसका medicinal value है. And there are many more plants other than these plants जिनकी medicinal values है. If you talk about
गार्लिक इज समथिंग जो आपने हर अपने घर में देखा होगा. सो वो यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द बीपी. ओके, जिसको अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है, इफ़ ही और शी टेक्स गार्लिक, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है. इसी तरह से जितने भी आपने ये प्लांट्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो तुलसी हो, धतूरा हो, नीम हो, आंवला हो, इनके इट्स नॉट ओनली कि इनकी रिस्ट्रिक्शन, दे आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दीज diseases, or they cannot only cure only these limited diseases or and limited things, but they can cure more than it. Okay, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट तुलसी जो है वो स्ट्रेस रिलीव करता है. ठीक इसी तरह से अगर स्टोमक प्रॉब्लम किसी को होती है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट या फिर एसिडिटी होती है, तो जो मुलेठी है, दैट इज़ लिक्विडस, तो वो उसको क्योर कर सकता है. इसी तरह से नीम की अगर बात करेंगे, ये डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ क्योर करने में, ट्रीटमेंट में. किसी को अगर फीवर होगा, स्टोमक प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो यूज़ किया जाता है. यूक्लिप्टस की अगर बात करेंगे, यहाँ पे बुक में हमने पढ़ा कि ये सिर्फ नोज़ एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज़ फॉर टीथ. अगर आपको दांतों में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है, या किसी तरह का दर्द है, तो हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक इसी तरह से किसी की ड्राई स्किन है, तो वो यूक्लिप्टस को यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट. या फिर किसी को पेन हो रही है, पेन अगर रिड्यूस करना हो, तो यूक्लिप्टस के लीव्स हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग about the medicinal value of different plants. And then there is one more thing, one important thing that we all must know, that is quinine is a cure for malaria. There is this disease called malaria. So its treatment is also डन. और इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी एक प्लांट की हेल्प की वजह से होता है. इसका ट्रीटमेंट, देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड चिंचोना प्लांट. सो वो एक ड्रग देता है, उससे एक ड्रग बनाया गया है क्यूनीन, एंड वही क्यूनीन जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग टू ट्रीट मलेरिया. सो मलेरिया जो एक डिजीज़ है, उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट जो है, उससे उसकी जो मेडिसिन है, दैट कम्स फ्रॉम अ प्लांट. दैट्स समथिंग यू ऑल मस्ट नो. Okay, so this was all about plants, that how they are important to us and what are the things they provide us. Now we are going to talk about the things that animals provide us, and we all know, in fact, that what are the things that animals provide us. They provide us food, they provide us milk, they provide us flesh, eggs, and so many things. So first thing what they provide us is milk. We get milk from animals like buffaloes, cows, and goats. We should drink a glass of milk every day. Milk is said to be a complete food, and it has all the nutrients required by our body. Milk is also used in making food products like butter, cheese, ghee, curd, and ice cream. So milk is something which we get from the animals like goat, buffalo, cow. गाय, भैंस या बकरी जो है वो हमें दूध देती है, और हमें हर रोज़ दूध पीना चाहिए, बिकॉज़ इसको एक कंप्लीट फूड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो ऑलमोस्ट मिल्क में सारी होती है. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो मिल्क में होती है. सो फॉर दैट रीज़न इसको रिकमेंड किया जाता है. इट्स सेड कि हमें रोज़ दूध पीना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ समथिंग वी शुड डू, कि हमें रोज़ दूध पीना चाहिए, बिकॉज इसमें ये कंप्लीट फूड है, इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है. देन देयर इज़ वन मोर थिंग, कि वी कैन टेक मिल्क एज सच, कि हम ऐसे दूध पी सकते हैं, बट देयर इज़ समथिंग मोर देन इट, कि हम मिल्क को यूज़ कर सकते हैं टू मेक सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट. कि कुछ ऐसी चीज़ें जो दूध से बनाई जाती है, जैसे कि घर में आप मक्खन खाते हो, दही खाते हो, पनीर खाते हो, इवन आइसक्रीम या फिर टॉफ़ीज़ जो होती है, खोया मिठाई जो है वो भी किससे बनती है? मिल्क से बनती है. सो दिस इज़ समथिंग वी शुड टेक, दिस इज़ समथिंग वी शुड ईट, बिकॉज उसमें मिल्क होता है, तो ऑब्वियसली हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं. एंड ये मिल्क हमें एक्चुअली मिल कहाँ से रहा है? इट कम्स फ्रॉम द एनिमल्स. आफ्टर दैट इज़ एग्स एंड फ्लैश. फिर हमें अंडे मिल रहे हैं एनिमल से, गोश्त मिलता है, जैसे कि मुर्गी है या फिर बतख है, वो हमें अंडे देती है. और देर आर सो मैनी एनिमल्स, जैसे कि गाय है, काउ, देर इज़ गोट, देर इज़ हैन, जो हमें फ्लैश देती हैं. सो जो गोट या काउ होती है, वो हमें फ्लैश देती है, जिसको मटन कहते हैं. तो दे प्रोवाइड अस फ्लैश. सो एनिमल्स दैट मीन्स दे प्रोवाइड अस फ्लैश. hen and duck, they provide us eggs. So
this egg and this mutton, where does it come from? ये flesh, ये milk, ये eggs, ये कौन हमें दे रहा है? It comes from animals. So ये eggs, ये mutton, ये flesh, ये milk, so these are something जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रेंट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. It has certain nutrients which are very important for our body, and we get this because of the animals. Okay, so this is something we get from the animals. So this is all about today we discussed. This is all about for today. That now we got to know about some more things that plants provide us, and we also got to know about some things that animals provide us. I hope this all is understood to you. Thank you, and have a very nice day.